Hello everyone, welcome again to online session of Manulaw classes. My name is Dinesh Kumar and I am former assistant professor of law at Campus Law Center, Law Faculty, Delhi University, and presently I am working as an academic head of Manulaw classes. So dear students, today I will discuss with you one of the latest judgment and the most important judgment of Honorable Supreme Court in the case of State of Kerala versus Ajit Kumar and others. But before moving forward, there is an important announcement for all of you. Admissions are open at Manulaw classes for the upcoming batch of 2022 and 2023. All of you may get yourself enrolled with us for getting the best result. For more information, you can dial the given number, and you may also visit our website, that is www.lawentranceindia.com. Now, we at Manu Law Classes are also providing 15 days free trial to all the aspirants of CLAT, IELTS and other law entrance examination. And in these 15 days free trial, you will get the following benefits. Number one, you will get the live classes with one-to-one interaction. You will get the recorded conceptual lectures on various topics. You will get the various topic tests and the various sectional tests. And at last, we will provide you the analysis of your performance, and this analysis will be done by our team of experts. So, for getting this facility, you need to do the following activities. First of all, you need to find the link in the description below. Next, you should locate the sign up for 15 days free trial, and then you should fill the form available there. Then you will be eligible to get the benefit of this facility. So, dear students, now we move to our the main topic of today, and the name of the decision is the State of Kerala versus K. Ajit and others. This is a special leave petition, and the date of decision is 28th July 2021. So, my dear student, this is the recent decision of Honorable Supreme Court, and this is very landmark judgment of Honorable Supreme Court. Why I am emphasizing so much upon the importance of this judgment? Because this judgment is related to the limit of the parliamentary privileges or the privileges which have been provided to the this state legislatures. Okay? So, in this judgment, I will discuss following provisions with you, and I will give you the brief introductions about all these provisions. So, first provision is Article 105 and Article 194 of Constitution of India. My dear students, Article 105 provides the parliamentary privileges to the Member of Parliament, MPs, and Article 194 provides the privileges to the Member of Legislative Assemblies. Means it provides privileges to the MLAs, and it provides privileges to the Member of Parliament. Now, we try to understand that what is the meaning of the term privilege. Privilege का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकार जो इन लोगों को दिए गए हैं, and these rights or these privileges are not available to an ordinary citizen of India. Means, suppose I am an ordinary citizen of India, so I don't have these privileges. But when I will become the MP or MLA of this either House of the Parliament, or I will become the MLA in either assembly of the state, then I would also be entitled to avail these privileges. So, these privileges have been provided to the MPs and MLAs only. Privilege means Vishesh Adhikar, means there are certain given situations. In these given situation, an ordinary citizen can be held liable for the violation of the law, but these persons are not liable for the violation of the law given some special circumstances. Now we come to section 321.
Section 321 is of CRPC and it provides for the withdrawal from prosecution. So basically what is withdrawal from prosecution? Prosecution आप जानते हैं क्या होता है? So when an FIR is registered against any person, then prosecution gets started. जैसे ही किसी पर्सन के खिलाफ या किसी पर्सन के अगेंस्ट FIR रजिस्टर की जाती है तो डियर स्टूडेंट्स प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब प्रोसिक्यूशन चलता कब तक है? जब तक कि ट्रायल का कंक्लूजन नहीं होता. ठीक है. अब क्या होगा कि सपोज एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट ए पर्सन एंड चार्ज शीट हैज आल्सो बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC. You may be aware 173 clause to be more specific. Then and the matter comes before court and court has taken the cognizance under section 190 of CRPC. So अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट FIR रजिस्टर की गई है, चार्जशीट फाइल कर दी गई है और कोर्ट ने उसके मैटर का, उस पर्टिकुलर केस का कॉग्निजेंस ले लिया है, देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर दैट पर्टिकुलर जज और कोर्ट टू विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन. Withdrawal from prosecution here means that all the allegation imposed against this accused person are taken back or withdrawal from the court by the public prosecutor on the behalf of the government. You know that all the criminal actions are taken by the state. So, and public prosecutor or assistant public prosecutor here represent the government side. So, this public prosecutor or assistant public prosecutor withdraw all the charges against that particular individual. Now we come to next. So in this section or in this particular judgment, these two offences were committed by an MLA, means that namely the K. Ajit, who is the respondent in this case. And as far as section 447 of IPC is concerned, it provides punishment for criminal trespass. So बच्चों criminal trespass क्या होता है अब हम ये समझते हैं. So criminal trespass is an offence as per section 441 of IPC. अब criminal trespass क्या होता है? So first of all we understand what is the trespass. So trespass means to enter upon the property of any person without the consent or without the permission of that person. Means अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर एंटर करता है और वो उस पर्सन की प्रॉपर्टी पर एंटर उस पर्सन की परमिशन के बिना करता है, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं ट्रेसपास. ट्रेसपास एक सिविल रॉन्ग भी है, मींस इट इज आल्सो अ टॉर्ट एंड इट इज आल्सो एन ऑफेंस. सो इफ वन पर्सन enters upon the property of other person with the intention of committing some offense, or he means accused threat the other person, threat the victim, or commit any other offense while remain upon the property of other person or while remain upon the property of victim, then he is said to commit the offense of criminal trespass. Now we come to section 427 of IPC. This section 427 of IPC provides punishment for causing mischief for more than 50 rupees properties. Mischief क्या है बच्चों? It has been defined under section 425 of IPC. Mischief क्या है? ये section 425 में इसको define किया गया है. अब mischief की अगर हम एक layman और एक general definition समझते हैं तो उसका मतलब होता है to damage or to destroy any public property or the property of any private individual or affecting the utility of that particular property. So when a person destroy or cause damage to either to the public or property or to the property of an individual and thereby he affect the utility of that particular property or diminishes its value, then it is said that such person has committed the offense of mischief. Now we come to the next provision. There is section 3 clause 1 of mischief with
respect to public property. So there is a separate act in our country, and that is the Prevention of Damage to Public Property Act 1984. Means if a person causes damage to the public property, then there will be two charges against that person. One charges will be under the IPC for mischief, and second charge will be under this particular law, that is Prevention of Damage to Public Property Act 1984. So now we come to the next part of this particular judgment. We come to the fact of this case. So this case is related to the action or act of an MLA, existing MLA at that point of time in Kerala Legislative Assembly. So ये जो रेस्पोंडेंट है इस केस में के अजीत, ये केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एग्जिस्टिंग MLA थे, और जब वहां पर बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, ठीक है, तो उस समय पर इन्होंने वहां पर काफी वायलेंस की, डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स की, और जो स्पीकर हैं उसकी ये डायस पर इन्होंने ट्रेसपास किया, और वहां पर जो माइक वगैरह रखे थे, चेयर वगैरह जो थी, उनको डैमेज कॉज की, ठीक है। सो इनके खिलाफ FIR रजिस्टर की गई इन रेलिवेंट सेक्शंस में, जो 447 है और 427 में। रीड विद सेक्शन 34 ऑफ IPC। सो डियर स्टूडेंट, सेक्शन 34 IPC प्रोवाइड्स फॉर द कॉमन इंटेंशन। मीन्स जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी ऑफेंस को करने के लिए और उसको करने के लिए अपनी सामान्य आशय से, यानी कि कॉमन इंटेंशन से कोई काम करते हैं, देन ऑल आर हेल्ड इक्वली लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो जब के अजीत के खिलाफ FIR दर्ज हुई और इन्होंने जो डैमेज कॉज की, ये इतने अमाउंट की इन्होंने डैमेज कॉज की, नाउ इनके खिलाफ एक्शन हुआ, केसेस हुए 447, 427 में, और सेक्शन 34 IPC हमने आपको बताया, और सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसा हमने आपके अभी आपके साथ डिस्कस किया। सो जब इनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुई, तो सब्सिक्वेंटली फिर चार्जशीट भी फाइल हुई। तो चार्जशीट जो फाइल होती है वो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया। सो बच्चों, जो कॉग्निजेंस टर्म है, इट इज अ टेक्निकल टर्म, ठीक है। So I'm telling you what is the meaning of term cognizance here. So term taking the cognizance has been provided under section 190 of CRPC, ठीक है, कि मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस लेता है किस सेक्शन में, सेक्शन 190 ऑफ CRPC में। कॉग्निजेंस का मतलब क्या है? सो इट मीन्स दैट टेकिंग द जुडिशियल नोटिस of a particular case by the magistrate that he will decide this case. He will decide this case, ठीक है, वो इस केस को डिसाइड करेगा। सो जब कोई मैटर या जब कोई केस किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि that there are sufficient evidences against this accused person, then he takes the cognizance of that particular matter. If magistrate thinks that there are no sufficient evidence against that accused person, then magistrate will not take the evidence and he may direct for further inquiry or further investigation as per the case. Now, so what happened? So cognizance was taken against this respondent in this case. Now what happened? But CJM subsequently, when the cognizance was taken, then assistant public prosecutor filed an application for withdrawal from prosecution. Means जब मजिस्ट्रेट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस ले लिया, तब असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन फाइल की उस CJM के कोर्ट में कि दैट ही वांट्स टू विड्रॉ द केस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन जो है ये बच्चों, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC। सो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन हियर मींस व्हेन एन एक्शन हैज बीन टेकन और अ केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट अ पर्सन, then
public prosecutor may withdraw the case with the consent of the concerned magistrate or concerned court. Why the consent of the concerned magistrate or court is taken? Because court thinks that, or court checks that, whether this assistant public prosecutor has filed the application with some mala fide intention, or there are some extraneous consideration. Means withdrawal from prosecution is only allowed when there are some genuine ground. Genuine ground here means, for example, that by withdrawing the prosecution it will serve the public justice, or there may be chances that person have some privileges and he has been mala fidely punished, or a case has been registered against such person with the mala fide intention either by the police or by any other authority. So first of all, this when application was filed, by the public prosecutor to withdraw from prosecution, then CGM did not allow the withdrawal from prosecution. पहले CGM ने अलाउ नहीं किया. Subsequently इसके डिसीजन के खिलाफ ये रिवीजन में गए 397 में हाई कोर्ट में. ठीक है, तो हाई कोर्ट ने भी जो CGM के डिसीजन था, CGM का डिसीजन जो था कि भाई आई विल नॉट अलाउ यू टू विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन द गिवन केस, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा. तो हाई कोर्ट ने भी CGM के डिसीजन को कंफर्म कर दिया. फिर जो स्टेट ऑफ केरला है ये स्पेशल लीव पिटीशन में जाता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, आर्टिकल 136 का मतलब ये होता है, इट प्रोवाइड फॉर द स्पेशल लीव पिटीशन. मींस according to article 136 of the constitution of India, if a person does not have the right to appeal, then such person may directly approach to honorable supreme court against the decision of any court or any tribunal within the territory of India and accept the decision of armed forces tribunal. Now we come, when the matter was before honorable supreme court, there were main two issues in this particular case before honorable supreme court, and the issue number one was, what is the limit of exercise of power by the public prosecutor under section 321 of the CRPC and exercise of jurisdiction by the court. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 321 CRPC में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या पावर है और उस मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, किन ग्राउंड पर वो कंसेंट दे सकता है या किस किस ग्राउंड पर वो कंसेंट को विड्रॉल कर सकता है और विदहोल्ड कर सकता है. वी कैन से दिस. सेकंड पॉइंट वाज दैट, और सेकंड इशू वाज दैट, वेदर द क्रिमिनल एक्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर द इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. मींस अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया है, क्या उसको उसके बिहाफ पर पर्टिकुलर MLA और MP प्रिविलेज क्लेम कर सकता है under article this 105 and 194 of the Constitution of India, as I discussed with you. So first of all, we take the contention of appellant in this case. Appellant here means state of Kerala. So appellant has raised following contention, and appellant wants to say that the action of the court to withhold the consent with respect to the withdrawal from prosecution or not to giving the consent with respect to the withdrawal from prosecution was not justified according to the law. And how this act was not justified, appellant has given the following contentions, and I'm discussing with you one by one. So first contention was that action of assistant public prosecutor to withdraw from prosecution is according to section 321 of the CRPC. Means the decision of assistant public prosecutor to withdraw from prosecution was based upon section 321 of CRPC. Means if the decision or if the act of the assistant public prosecutor was in accordance to the section 321 of CRPC, then honorable court, either CGM or honorable high court, should have allowed the withdrawal from prosecution. Second, the protest by the MLA is protected by the immunities and privileges under article 194 clause 3 of the Constitution of India. अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्रोटेस्ट.
सो कंटेंशन एपिलेंट की ये थी कि भाई दिस MLA मीन्स के अजीत एंड अदर्स, दे वर डूइंग द प्रोटेस्ट, ठीक है, एंड प्रोटेस्ट इज वन ऑफ द एक्ट which has the protection of immunities under article 194 clause 3. लेकिन ये थोड़ा भूल गए कि प्रोटेस्ट देयर इज सम लिमिट ऑफ द प्रोटेस्ट एज वेल, ठीक है, यू कैन नॉट कमिट द क्रिमिनल एक्ट इन द ग्रेव ऑफ द प्रोटेस्ट, ठीक है, तो बट दिस ओवरऑल दिस वाज द कंटेंशन ऑफ द appellant. Third, act of accused fall exclusively within jurisdiction of speaker and not within the jurisdiction of the court. तो बेसिकली आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अब अगर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इधर पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, if any member of parliament or if any member of legislative assembly of the state does any misconduct, then all the decision with respect to that particular act are taken by the speaker of the either of the Lok Sabha or the speaker of the legislative assembly of that particular state, and court does not have the jurisdiction in such matters, ठीक है, तो ऐसे मामले में कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होता. तो थर्ड कंटेंशन ये थी कि भाई जो उसने प्रोटेस्ट किया है, अगर प्रोटेस्ट में उसने कुछ मिसबिहेव किया है, इफ ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, देन दिस फॉल अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द स्पीकर एंड ऑनरेबल कोर्ट डज नॉट हैव जुरिडिक्शन इन दिस रिगार्ड. सो इफ द कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन इन दिस रिगार्ड, then court cannot decide this particular case. So he wants to withdraw from the prosecution of this particular case. इसलिए वो इस particular case को prosecution से withdrawal करना चाहते हैं. Next, police could not register FIR against the accused MLA without the permission of speaker. Fourth contention ये थी कि इस पर्टिकुलर केस में पुलिस ने दिस कंसर्न्ड MLA और रेस्पोंडेंट के अजीत के खिलाफ FIR रजिस्टर की, लेकिन क्योंकि ये मैटर दिस एक्सक्लूसिवली इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस में फॉल करता है, देन पुलिस शुड नॉट हैव रजिस्टर्ड FIR विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. नेक्स्ट, द कंटिन्यूएंस ऑफ द ट्रायल ऑफ द accused MLA without sanction of speaker lower the dignity of the assembly and it affects the public interest. This was one of the important contention on the part of the appellant, that कि उन्होंने कहा कि भाई first of all FIR should have been registered by the police only with the permission of speaker, ठीक है, लेकिन पुलिस ने ये गलती की कि स्पीकर की परमिशन के बिना भी FIR रजिस्टर की. दूसरी बात, एक मिस्टेक पुलिस ने तब की. दूसरा सेकंड मिस्टेक क्या है कि अगर स्पीकर की कंसेंट के बिना भी इस कंसर्न रेस्पोंडेंट या MLA के खिलाफ केस चलता रहेगा, देन इट विल अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द और द ऑथोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली इट विल अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. क्यों? दो रीजन है. पहला, MLA was representative of public. पहला तो MLA जो है वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. दूसरा बात है, there are some privileges and immunities. थर्ड पॉइंट हम कर सकते हैं, this matter falls exclusively within the jurisdiction of स्पीकर. तीन पॉइंट उसने दिए कि ये ऐसे पब्लिक जस्टिस को अफेक्ट करेगा. सो अगर इसका विड्रॉल एप्लीकेशन अलाउड नहीं की गई तो ये पब्लिक जस्टिस को अफेक्ट करेगा. सो द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर filed the withdrawal application was justified and genuine ground. Next contention was that
There was lack of mens rea on the part of accused MLA. Whatever he did for the public benefit. So his application should be allowed. तो बेसिकली नेक्स्ट कंटेंशन ये थी कि जो कंसर्न्ड MLA हैं, जो रेस्पोंडेंट है दिस पर्टिकुलर केस में, उनके पार्ट पर मेंस रिया नहीं थी. मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया इज द गिल्टी इंटेंशन एंड वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम. ये गिल्टी इंटेंशन है, मींस कि बिना गिल्टी इंटेंशन के कोई ऑफेंस नहीं हो सकता, ऐसा आईपीसी कहती है. तो कंटेंशन ये थी एपिलेंट की कि मेंस रिया नहीं थी उनके पार्ट पर, मींस उनकी कोई गलत एक्ट करने की या कोई ऑफेंस करने की इंटेंशन नहीं थी, आशय नहीं था, और इसलिए whatever he did means he was doing just protest and we cannot consider protest as a criminal act. ठीक है, क्योंकि उनकी मेंस रिया नहीं थी. अब अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, मीन्स वो पब्लिक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अगर कोई पर्सन पब्लिक के लिए प्रोटेस्ट करता है और उसको हम प्रोसिक्यूट करेंगे, देन इट वुड आल्सो अफेक्ट द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस. सो इस ग्राउंड पर भी उनकी विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट, ए कॉपी ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इंसिडेंट. हाँ, अब ये कहते हैं कि जो इंसिडेंट की कॉपी थी वीडियो रिकॉर्डिंग की, दैट वाज टेकन विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्पीकर. तो बेसिकली जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो यहाँ पर स्पीकर होते हैं, ये सारी प्रोसीडिंग सब इनकी ही सुपरविजन में होती है और इनकी ही परमिशन से होती है. सो वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी इंसिडेंट की, वो विदाउट सैंक्शन ऑफ दिस स्पीकर ली गई, इसलिए इट विल नॉट बी अ प्रॉपर एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एज पर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस है. ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्शन 65B में उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल करने के लिए किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के या किसी कंसर्न अथॉरिटी के सिग्नेचर होने जरूरी है. ठीक है, तो क्योंकि इस केस में सिग्नेचर शुड हैव बीन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के यहाँ पर सिग्नेचर नहीं थे, इसलिए ये कहा कि ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं होगी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल और फॉर द पर्पज ऑफ कन्विक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट पर्सन इन द गिवन केस. इसलिए विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन को अलाउड किया जाना चाहिए. Now we come to the contention of respondent. और तो अभी तक देखो बच्चों, हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि एपिलेंट ने अपने 7 पॉइंट्स रखे, 7 ग्राउंड्स रखी, जिन ग्राउंड पर वो ये जस्टिफाइड करना चाहते हैं कि द एप्लीकेशन filed by the assistant public prosecutor in the given case was genuine and it was based upon the genuine concern or genuine ground, and it should have been allowed by the concerned magistrate or the even by the high court or honorable high court. Now we come to the contentions of respondent. First contention was immunity can be claimed by MLAs only in respect to exercise of the free speech and voting. So basically आर्टिकल 194 इस बात को कहता है, ठीक है, कि भाई आप फ्री स्पीच में और वोटिंग में ही अपने इम्यूनिटीज को एक्सरसाइज कर सकते हो. मींस जो आपको प्रिविलेजेस दिए गए हैं, दीज प्रिविलेजेस आर अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड विद रेस्पेक्ट टू द वोटिंग राइट, एंड दीज प्रिविलेजेस आर नॉट अवेलेबल टू यू टू कमिट एनी ऑफेंस. सो as held by Honorable Supreme Court in the P.V. Narasimha Rao versus State, the alleged offence committed by the respondent accused did not have any nexus with the speech or vote. तो पहली कंटेंशन ये थी कि जो privileges दिए गए हैं, these are only limited to the vote or the right to speech and expression. लेकिन इस given situation में जो एक्ट किया है, उसने जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया है, ट्रेसपास किया है, मिसचीफ किया है, there is no nexus between the voting right and right to speech and expression on the one side or on the one hand, and causing the damage to the public property or committing the criminal trespass on the other hand. Means MLA के या respondent accused के एक्ट में और privilege में कोई relationship नहीं है, इसलिए you cannot claim
these privileges as a matter of right in the given situation. Second, the case against MLA was registered at the instance of the Secretary of the Legislative Assembly. तो ये कहते हैं, अभी पहली कंटेंशन में हमने देखा कि वो कहते हैं कि भाई स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की कंसेंट ली जानी चाहिए थी टू रजिस्टर द केस, लेकिन ये कहते हैं कि सेक्रेटरी जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसकी कंसेंट से ही केस रजिस्टर किया गया, इसलिए देयर वाज इम्प्लाइड कंसेंट और दिस फैक्ट वाज विद इन द नॉलेज ऑफ द स्पीकर. सो वी मे इन्फर implied consent on the part of the speaker in the given case. So if the consent has been taken of the speaker in the given case, or there was implied consent on the part of speaker in the given case, then it will the prosecution is valid. Now we come to next. The role of court under section 321 is to assess whether the application has been made in good faith in the interest of justice. So this good faith is the one ground, in the interest of justice is the another ground, and public policy, and not to stifle the process of law. The application of the prosecutor fails to inform the court how to withdrawal of the prosecution in this case would achieve these objectives. So it was another contention on the part of the respondent. Respondent के पार्ट पर एक another contention ये थी कि भाई withdrawal from prosecution की जो एप्लीकेशन है वो केवल आप गुड फेथ में फाइल करेंगे या पब्लिक जस्टिस में या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में फाइल करेंगे और या पब्लिक पॉलिसी के बिहाफ पर आप फाइल करेंगे. लेकिन इस गिवन केस में, इस गिवन सिचुएशन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसने इस एप्लीकेशन को फाइल किया, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया कोर्ट को कि दैट द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द गिवन केस इज रेलिवेंट विद द जस्टिस और पब्लिक पॉलिसी इन सच वे और इन दिस पर्टिकुलर वे. नेक्स्ट, the conduct of MLA cannot be deemed to be in the furtherance of functioning of the free democracy and does not warrant the invocation of immunities and the privileges. तो बेसिकली वो कहते हैं कि भाई जो privileges आपको दिए गए हैं, these are available only with respect to this right to vote and right to freedom of speech and expression. लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर एक्ट में तो आपने या रेस्पोंडेंट ने ऑफेंस किया है. ऑफेंस कौन सा? मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इन ऑफेंस के रेफरेंस में हम रेस्पोंडेंट को ये नहीं कह सकते कि द एक्ट कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट इन द गिवन सिचुएशन इज रिलेटेड टू द दिस फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी और इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस. क्योंकि जब कोई पर्सन कोई भी क्रिमिनल एक्ट करता है, सो द क्रिमिनल एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड as in the furtherance of the democracy or in the furtherance of any public policy. तो क्रिमिनल एक्ट को हम ये नहीं कह सकते कि वो डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए किया गया है. ठीक है, तो क्रिमिनल एक्ट इज अ सेपरेट एक्ट एंड इट इज अ पनिशेबल एक्ट. नेक्स्ट, there is no provision either in the constitution in the rule of procedures conduct of the business in the Kerala Assembly which mandate the police to seek permission. मीन्स ये कहता है कि ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और ना ही केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल्स में कोई ऐसा प्रोविजन है जो ये मैंडेट करता हो कि पुलिस को पहले स्पीकर की परमिशन लेनी चाहिए बिफोर रजिस्टरिंग अ क्राइम अगेंस्ट द कंसर्न्ड एमएलए. तो अगर ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, सो पुलिस इज नॉट एट ऑल बाउंड टू कंप्लाई दैट पर्टिकुलर लॉ इफ इट इज नॉट ए लॉ. Now we come to the decision of Honorable Supreme Court in this case. So before moving the decision part, just we have a look of this section 321. And as per section 321, withdrawal from prosecution, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case. So withdrawal कौन कर सकता है? जो उसके चार्ज में हो. May with the consent of the court at any time before the judgment is pronounced. अब देखिएगा ड्यूरिंग द ट्रायल भी हो सकता है.
withdraw from the prosecution any person either generally or in respect of any or more of the offenses for which he is tried, जिसके लिए वो ट्राई किया जाता है. And upon such withdrawal, if it is made before the charge, अब देखिए क्या है कि अगर किसी का विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन चार्ज फ्रेम करने से पहले ली जाती अलाउ होती है या फाइल की जाती है और कोर्ट उसको अलाउ कर देता है, तो उसका इफेक्ट होगा डिस्चार्ज. ठीक है, तो अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं और एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो उसका इफेक्ट होगा डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का मतलब है कि उस पर्सन के खिलाफ चार्ज ही नहीं फ्रेम हुए, मींस देयर वर नो सफिशिएंट एविडेंसेस अगेंस्ट दैट पर्सन टू प्रोसीड फर्दर और टू फ्रेम द चार्जेस. सेकंड है, अगर चार्ज फ्रेम करने के बाद होता है तो फिर क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है जैसे वो पर्सन एक्विट हुआ हो. ठीक है, एक्विट का मतलब है when the offense of a person is not proved beyond the reasonable doubt in a particular case. जब किसी भी अपराधी का अपराध beyond the reasonable doubt कोर्ट में प्रूव नहीं होता है, तब that person is said to have been acquitted. तो हम ऐसा कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि उस पर्सन को एक्विट कर दिया गया है. Now we come to the views of Honorable Supreme Court. So I will discuss this in two parts. First of all, I will discuss with you the reasoning or logic behind the application of 321, means withdrawal from prosecution. And in the second part, I will discuss the immunities and privileges part of this particular case. Honorable Supreme Court held that the public prosecutor may withdraw from a prosecution not merely on the ground of paucity of evidence, but also for the further broad end of the justice. तो बेसिकली अब देखिएगा, अभी हम लोगों ने सेक्शन 321 को पढ़ा, लेकिन सेक्शन 321 में केवल ये मेंशन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में, एंड इफ द कोर्ट विल गिव द परमिशन देन प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉल. यही पढ़ा हमने, बट we don't find any ground on the basis of which the prosecution can be withdrawn in a particular case. So Honorable Supreme Court has made this statement in the furtherance of that particular statutory provisions. तो ये कहता है कि अगर withdrawal from prosecution की application फाइल करनी है तो उसके लिए केवल paucity या shortage of evidence is not the only ground. Means ये नहीं है कि अगर किसी पर्सन के खिलाफ एविडेंस कम है तभी हम इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं. नहीं, कुछ और ग्राउंड भी हो सकती हैं, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी हो, पब्लिक जस्टिस को आगे बढ़ाएगा, है ना, या किसी ये लॉ के अनुसार है, या उस पर्सन के पास कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं. अगर इसको कन्विक्ट किया गया तो इट वुड अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ दोज प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज. इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल एक ही ग्राउंड नहीं है, बल्कि इसका क्राइटेरिया ब्रॉडली देखा जाना चाहिए एंड नॉट इन ए नैरो मैनर. ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए कोर्ट का जब वो अपनी कंसेंट देते हैं. नेक्स्ट, while the mere fact that the initiative had come from government will not vitiate an application for the withdrawal, the court must make an effort to elicit the reason. अब बेसिकली क्या होता है, कई मामलों में जो हमारे कोर्ट हैं वो ये सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन दी है, तो इसका मतलब ये है देयर इज सम मेलाफाइड इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पार्ट पर कुछ मेलाफाइड इंटेंशन है और इस पर्टिकुलर पर्सन को ये गवर्नमेंट बचाना चाहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में गवर्नमेंट की तरफ से विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन आती है तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए, रादर that must be considered on the basis of merit of that particular this application. उस एप्लीकेशन को भी उसकी मेरिट के आधार पर उसकी जांच होनी चाहिए. क्या अगर अलाउ किया जाता है उस एप्लीकेशन को तो पब्लिक जस्टिस कैसे सफर करेगा, या अगर उसको अलाउ किया जाता है तो कैसे ये पब्लिक जस्टिस को स्ट्रेंथन करेगी, और अगर उसको अलाउ नहीं किया जाता है तो कैसे ये पब्लिक जस्टिस को अफेक्ट करेगी और वायलेट करेगी. ठीक है, तो केवल गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन दी गई है, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड टू बी द क्राइटेरिया टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन.
नेक्स्ट, a claim of privilege cannot be used as a shield of circumvent the application of criminal law since no person enjoy privilege against a criminal. ये this is very very important. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई a claim of privilege cannot be used as a shield of circumvent the application of criminal law. Means if you have done any criminal act, then you cannot take your privileges in the form of shield to get the protection from that this particular criminal act. Means अगर आपने कोई criminal act किया है तो आप अपने privileges के आधार पर उससे कोई protection नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि criminal law privileges में नहीं अप्लाई होता, लेकिन केवल तभी अप्लाई नहीं होता जब वो privileges की स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की जाए और वो पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि जो प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं एमपी और एमएलए को, दीज आर अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दीज आर अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू राइट टू वोट। तो केवल दो सिचुएशन में अवेलेबल है, और अगर कोई पर्सन क्रिमिनल एक्ट करता है तो उसमें वो अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, while determining whether the withdrawal of the prosecution subserve the administration of justice, the court would be justified in scrutinizing the nature and gravity of the offence and impact upon the public life, especially where matters involving public fund and the discharge of public trust are implicated. Means अब ये कहता है कि भाई क्या किसी पर्सन का एक्ट कितना अफेक्ट करेगा सोसाइटी को, तो वहां पर उस पर्टिकुलर ऑफेंस की, उस पर्टिकुलर एक्ट की एक ग्रेविटी देखता है कोर्ट, और उस ग्रेविटी देखने के आधार पर ही एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आता है कि वेदर इन द गिवन सिचुएशन दीज एक्ट ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन एज इन द केस ऑफ रेस्पोंडेंट इन दिस पर्टिकुलर केस शुड बी कंसिडर्ड एज ए ग्राउंड और एज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेज और नॉट। नाउ entire foundation upon which the application for withdrawal from prosecution was moved by the public prosecutors based upon the fundamental misconception। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो इस केस में 321 की एप्लीकेशन किसने दी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने दी, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन इस मिसकंसेप्शन के आधार पर दी कि उनको ये लगा कि व्हाट एवर एक्ट इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली by the member of the legislative assembly are protected under the privileges and immunities as mentioned under article 194 of the Constitution of India। Means इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन दी, उनको ये लगा कि सारे एक्ट जो भी एमएलए उस लेजिस्लेटिव असेंबली में करता है वो उन सबको प्रोटेक्शन मिली हुई है क्रिमिनल लॉ से, लेकिन ऐसा नहीं है। सो दिस वाज द मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिस पर्टिकुलर केस। ही थॉट दैट all the act of the MLA will get the protection and immunities, but it is not the case. Now we come to the second issue means कि उनकी लिमिट क्या है, किसकी, जो हमारे प्रिविलेजेस हैं। Sanctions to prosecute MLA immunities required only in respect of, अब यहाँ पर हम देखिए वो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रिविलेजेस के बारे में है। तो बेसिकली क्या है, हमारे जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस हैं और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस हैं वो कहीं पर कॉडिफाइड नहीं, ठीक है। तो एक का मेंशन है 105 आर्टिकल में और दूसरा मेंशन है 194 आर्टिकल में। इससे संबंधित कुछ प्रोविजंस हमारे 42nd अमेंडमेंट में भी दिए गए हैं, लेकिन इन प्रिविलेजेस को अभी तक क्लियरली नहीं किया गया है। तो अभी तक की जो प्रेजेंट लीगल पोजीशन है वो प्रेजेंट लीगल पोजीशन ये है कि केवल अगर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक्शन लेना है किसी एमएलए एमपी के खिलाफ, तब ही केवल सैंक्शन की प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता होती है। मींस अगर किसी एमएलए या एमपी ने क्या किया है, सेक्शन 19 ये मिसबिहेवियर को डिफाइन करता है, मतलब जैसे कोई करप्शन किया है, कोई ब्राइब वगैरह ली है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर उसने सेक्शन 19 में कोई ऑफेंस किया है तभी उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए
स्पीकर की सैंक्शन मतलब परमिशन की आवश्यकता होती है और किसी भी मैटर के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। दिस वाज मेड क्लियर बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सेकंड, इस कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस लिया राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा केस का। दिस इज वन ऑफ द लैंडमार्क केस बच्चों ऑन प्रिविलेज। तो प्रिविलेज पर ये मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट है और ये आपका प्री के, अगर आप जुडिशरी वगैरह की तैयारी करेंगे, ठीक है, और जब आप एलएलबी में जाएंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद, तब आपको ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हमारे देश में, उनके पास ये राइट नहीं है, दे डोंट हैव द राइट टू डिसाइड देयर ओन प्रिविलेजेस, ठीक है, एज इन द केस ऑफ यूके। क्योंकि यूके में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। तो यूके की पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो अपने प्रिविलेज और इम्यूनिटीज को खुद डिसाइड कर सकती है, लेकिन हमारे देश की पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट नहीं है कि अब वो अपनी इम्यूनिटीज और प्रिविलेज को खुद डिसाइड कर दे। क्यों? क्योंकि वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, मीन्स in our country constitution of India is considered to be supreme, ठीक है, and every decision is taken according to the constitution of India, ठीक है। so अगर पार्लियामेंट अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाना चाहती है, then judiciary can interfere with the considering the situation given in the constitution। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाती है तो जुडिशरी के पास राइट है कि वो उसका जुडिशियल रिव्यू ले सकती है और उसमें इंटरफेयर कर सकती है और उसकी वैलिडिटी को चेक भी कर सकती है। The person who have been named as accused in the FIR in the present case is responsible elected। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्यूज्ड है इस केस में वो एक रेस्पॉन्सिबल इलेक्टेड एमएलए है, ठीक है, और वो उससे ये एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि दैट ही वुड डू द क्रिमिनल एक्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इन द सेम मैनर, उन्होंने कहा कि जो एमएलए है ही सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड इन द सेम मैनर एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मींस एमएलए भी एक भारत का सिटीजन है तो उसके भी राइट या उसके भी प्रिविलेजेस वही हैं विद रेस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ जो कि किसी एक इंडिविजुअल सिटीजन के हैं। सो अगर एक इंडिविजुअल सिटीजन क्रिमिनल ट्रेसपास का या मिसचीफ का एक्ट करता है तो जो पनिशमेंट उसको मिलेगी सिमिलर पनिशमेंट उस एमएलए को भी मिलेगी, क्योंकि एमएलए को जो प्रोटेक्शन दी गई है, इम्यूनिटीज दी गई है, दैट इज लिमिटेड एंड दैट डज नॉट इंक्लूड द क्रिमिनल एक्ट। वो क्रिमिनल एक्ट उसमें शामिल नहीं है। In the same manner as any other, they are subject to the boundaries of lawful behavior set by the criminal law। Means उनको भी क्रिमिनल लॉ की जो बाउंड्रीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते बाय विच दे वुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड देयर बाउंड्री। इस केस में क्या हुआ, उसने मिसचीफ किया, ट्रेसपास किया, चेयर तोड़ी, माइक तोड़ा, स्पीकर को परेशान किया। सो दिस एक्ट अमाउंट्स टू क्रिमिनल एक्ट एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट, no member of elected legislature can claim either a privilege or an immunity to stand above the sanctions of criminal law। Means कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिविलेज और इम्यूनिटी को क्लेम नहीं कर सकता कि वो क्रिमिनल लॉ से ऊपर है। नहीं, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ, सबको लॉ का पालन करना पड़ेगा एंड नोबडी इज अबाउट द लॉ बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। हमारे देश में कानून का शासन है और किसी इंडिविजुअल का शासन नहीं है। Which apply to all citizens. Privileges have been granted to these MP and MLA so that they can perform their functions freely without fear of anything। ये प्रिविलेज इसलिए दिए गए हैं ताकि वो अपने फंक्शन को फ्रीली करें और बिना किसी के इंटरफेयर के लिए करें। लेकिन ये प्रिविलेजेस इनको इसलिए नहीं दिए गए हैं that they will commit criminal act within the four wall of the this either of the parliament or either of legislature assembly of a particular state। ये प्रिविलेज इनको इसलिए नहीं दिए गए हैं कि ये पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में जाकर क्रिमिनल एक्ट करेंगे। प्रिविलेजेस इनको इसलिए दिए गए हैं ताकि ये अपनी बात को
बिना किसी फियर के रख सकें, कह सकें। Privileges and immunities are not gateways to claim exemptions from the general of the country. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज ये गेटवे नहीं है आपके लिए कि आप क्रिमिनल लॉ से एग्जाम्पशन कर लें। नो 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 नो। पर्टिकुलरली इन दिस केस द क्रिमिनल एक्ट विच गवर्न द एक्शंस ऑफ एवरी सिटीजन टू क्लेम एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ would be betray the trust which is impressed upon the character of elected. Means अगर ऐसे पर्सन को क्रिमिनल मैटर्स में भी प्रिविलेज दिया गया तो ये उस ट्रस्ट को ब्रीच माना जाएगा जो कि उन लोगों पर इम्पोज किया गया है, जो उन लोगों पर एंट्रस्ट किया गया है बाय द जनरल पब्लिक बाय whom they have been elected। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का भी वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि हमारे जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड फॉर एक्साइज इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द सेकेंड लिंब ऑफ 194 क्लॉज 2। बेसिकली ये कहता है कि जो इम्यूनिटीज 194 क्लॉज 2 में दी गई हैं, इस इम्यूनिटी में केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शामिल है और क्रिमिनल एक्ट शामिल नहीं है। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की वेल में कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते कि आप कोई क्रिमिनल एक्ट करें और बाद में ये बोले नो 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 दिस इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नो, दिस विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द वन साइड एंड द क्रिमिनल एक्ट इज द अदर साइड ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो ये किसी पार्ट का एक साइड है और क्रिमिनल एक्ट इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, सो आप कोई भी एमएलए या एमपी क्रिमिनल एक्ट को इस आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकता दैट ही हैज एक्सरसाइज हिज राइट टू दिस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये उसको कोई ग्राउंड या कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इस आधार पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए क्या, इट वॉज नॉट द इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किया, टू एक्सटेंड द इंटरप्रिटेशन of the freedom of speech to include the criminal act by putting them under the wheel of protest। Means आप protest के नाम पर कोई भी criminal act नहीं कर सकते। There is a limit of protest as well। तो protest आपको करना है तो protest के एक particular manner में protest कीजिए। protest के वेल में या protest के रूप में आप कोई भी criminal act नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे then you will be punished according to the criminal law of the country। अब हम पढ़ते हैं 194 क्या कहता है। देखिए 194 क्लॉज 2 की यहाँ बात की गई है, नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट। अब ये सेड क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सेड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और वोट। तो जब भी हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि जो प्रिविलेजेस हैं, it is available with respect to two things, one is the right to speech and expression and second is right to vote। और इस given situation में जो MLA का एक्ट है ये एक प्योर क्रिमिनल एक्ट है, so it cannot be protected by the immunities and privileges of this particular law। criminal act of accused cannot be considered as a publication of proceeding। अच्छा बच्चों, क्या होता है यहाँ पर, आर्टिकल 360 क्लॉज 1 है और ये कुछ प्रोटेक्शन देता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती हैं। ठीक है, तो इसकी कंटेंशन ये थी कि जब वो इंसिडेंट हो रहा था तो उस इंसिडेंट की मीडिया कवरेज अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी कई न्यूज़पेपर ने इसको टेलीकास्ट किया, कई लोगों ने इसको देखा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसीडिंग है भाई, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ही वो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो क्रिमिनल एक्ट हो रहा था, इट शुड गेट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 361A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक क्रिमिनल एक्ट है और दिस क्रिमिनल एक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसीडिंग और पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 361 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रीड विद आर्टिकल
194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट को आप पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग नहीं कह सकते, तो जो प्रोटेक्शन पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग को है वो आप क्रिमिनल एक्ट को नहीं दे सकते। इसलिए इस केस में फाइनली कोर्ट ने एक्यूज को गिल्टी माना और उसकी जो एसएलपी है उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, so my dear students, that's all for today. Please go through this case, and if you have any doubt, just mention in the comment box and I will answer to you. Till then, goodbye, take care, and all the best. Thank you very much.